پاکستان امیر کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم کا نسخہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں زیادہ ڈالر آئیں تو ملک امیر ہو جائے گا، زیادہ ڈالر باہر جائیں گے تو غریب ہو جائے گا۔ ملک میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں، ہم مستقبل کا پلان کرنے جا رہے ہیں، ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں۔ شارٹ کٹ کی وجہ سے یہ راستہ لیتے ہیں۔ الیکٹرک موٹر سائیکل کے سارے پارٹس پاکستان میں بنیں گے۔ لاہور اور پشاور باغوں کے شہر تھے مگر پولوشن ڈینجر زون میں جا چکے۔ قوم کے اربوں روپے بچائے، شہباز شریف کا احتساب عدالت لاہور میں بیان، کہا سارا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا تھا، میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، ہم نے قوم کی خدمت کی ہے۔ عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانے کی روش 3 سال سے جاری ہے، شہزاد اکبر سے استعفیٰ لے کر ان کے خلاف ہائی لیول انکوائری کروائی جائے، وقت آنے پر ایک ایک کیس کا حساب لیں گے۔ منی لانڈرنگ، رمضان شوگر مل اور آشیانہ ریفرنس پر سماعت۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی احتساب عدالت میں پیشی۔ جج نے شہباز شریف سے پوچھا کہ آپ نے کارکردگی سے متعلق رپورٹ نیب تفتیشی کو دی تھی، جس پر شہباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتابچہ پیش کر دیا۔ عدالت نے مزید کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ آزاد کشمیر کے انتخابی جنگ تیز، آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرے گی۔ مریم نواز کچھ دیر میں مظفر آباد پہنچیں گی۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے مریم نواز کی الیکشن مہم کا شیڈول جاری کر دیا۔ شام 4 بجے مظفر آباد کرکٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا، تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پیپلز پارٹی بھی متحرک، آج کشمیر کے علاقے حویلی میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ کو رنگ برنگے جھنڈوں اور بینر سے سجا دیا گیا، سٹیج تیار، پنڈال میں کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ سال سے پاکستان میں داخل ہوئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، سو تمام لوگوں کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ویزا آن لائن کر دیا گیا ہے اور ویزا آن لائن کیبنٹ کی اجازت سے 30 دن کے اندر اندر اس کی اجازت آ جاتی ہے۔ بلاول دل کا جانی ہے، کشمیر میں جا رہا ہوں، بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ یہ کیا کریں گے کشمیر میں؟ عمران خان وہاں جیتے گا جی، بلہ وہاں جیتے گا۔ آزاد کشمیر میں اگلی حکومت تحریک انصاف بنائے گی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، کہتے ہیں بلاول دل کا جانی ہے، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ملک میں مقیم تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کرنے کا بھی اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان میں 40 سے 50 ہزار لوگ لاپتہ ہیں، ترکھم بارڈر کو ویکسینیشن کروانے کے لیے کھول رہے ہیں۔ کہا کہ ہم پر منشیات کا الزام غلط ہے، منشیات پاکستان سے باہر نہیں بلکہ باہر سے پاکستان اسمگل ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ڈیرہ غازی خان، عوام کی شکایات اور فرائض سے غفلت برتنے پر سخت ایکشن، 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ عوامی مسائل کا بروقت ازالہ نہ کرنے والے افسران کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، بہت نرمی کر کے دیکھ لی، اب افسران کو افسر شاہی چھوڑ کر عوامی خدمت کرنا ہوگی، جہاں کوتاہی یا غفلت نظر آئی بغیر وقت ضائع کیے ایکشن ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کی تدبیریں ناکام ہو گئی، معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی ٹویٹ، کہتی ہیں آر پار کے نعرے لگانے والی جماعت پاؤں پکڑنے کی باتیں کرنے لگی، کپتان لٹیروں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا۔ اقتدار کی ہوس میں اندھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر الزامات ان کی منافقت کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں تکلیف عوامی مسائل کی نہیں بلکہ اقتدار سے دوری کی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم ابر آلود، لاہور میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، حبس بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت شمال مشرقی پنجاب میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے شہروں ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں بھی آج بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی کے ساتھ بارش متوقع۔
सिंध में नकल माफिया सरगर्म, कराची में नवी जमात साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा शुरू होने से आधा घंटा कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुज़श्ता रोज कराची में मैट्रिक का रियाजी का पर्चा आउट हुआ था। कोयटा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, आवाम के पसीने छूट गए। शहर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी। कारोबारी जिंदगी समेत घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सरियाब रोड, कुमरानी, कवारी रोड समेत जिना रोड और शहर के दीगर इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर रात 7 बजे तक वक्फे वक्फे से बिजली गायब रहने लगी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 0 हो गया। तर्जुमान वजारत तवानाई का दावा, कहा कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। तमाम डिस्कोस को तलब के मुताबिक बिजली फ्राहम की जा रही है। लोड शेडिंग सिर्फ उन इलाकों में है जहां लॉसेस की बुनियाद पर शेड्यूल में है। कराची में इंतजामिया की गफलत, इंतहाई अहम सड़क को खूनी रास्ते में तब्दील कर दिया। तेज रफ्तार रोड पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, ना स्ट्रीट लाइट। पैदल चलने वाले आए दिन हादसात का शिकार होने लगे। अंधेरे की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स भी अरूज पर। इलाका मकीनों का फौरी ट्रैफिक सिग्नल लगाने का मुतालबा। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कराची में सजाई गई एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जहां ऊंचे तगड़े बादशाह बबलू टबलू मौजूद हैं, वहीं गिनी नस्ल का साहिवाली बैल भी अपनी खूबसूरती के झंडे गाड़ रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक। एक दिन में कोरोना के मजीद 1683 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह 3.33% रही। 24 घंटों में 50,531 टेस्ट किए गए। बाबा खिदमत मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी की 5वीं बरसी इंसानियत के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। इनके हाथों से लगा ईदी फाउंडेशन का पौधा तनावर दरख्त बन गया। इंसानियत की खिदमत में अब भी मसरूफ़। दुबई की सबसे बड़ी जबल अली बंदरगाह पर धमाका, इमारतें लरज़ उठीं, झटके से दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। धमाके से आग के शोले मीलों दूर तक नजर आए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वाक़या बंदरगाह पर मौजूद कंटेनर जहाज में पेश आया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा, कहा हम पर लगाई गई पाबंदियां खत्म की जाएं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने हामियों को कैपिटल हिल हमले पर उकसाया। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची के मुमताज आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर नामालूम शख्स का चाकू से हमला। कोरंगी दारुल उलूम की मस्जिद में मुफ्ती तकी उस्मानी हमले में महफूज रहे। करीब मौजूद अफराद ने हमलावर को पकड़ लिया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान ने। राहील, इस हमले से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी इमरान, ये आज सुबह फजर के वक्त वाक़या पेश आया था, जिसमें ये बताया जा रहा है इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कि एक शख्स आया और उसने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से अकेले में कुछ बात करना चाहिए, जिस पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ा सा डिस्टेंस किया, लेकिन वो उसके बावजूद अलर्ट थे, चूंकि इससे पहले भी उनकी जान को खतरात लाद थे और एक दफा पहले भी उन पर अटैक हो चुका है। और उस शख्स ने कुछ बातों के दौरान अपनी जेब में हाथ डाला, जिस पर फौरी तौर पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक तोहफा, एक गिफ्ट आइटम और एक छोटा सा चाकू बरामद हुआ, जिस पर उस इंटरोगेट करके पुलिस को कॉल की गई। पुलिस वहां पर पहुंची तो हमारी बात हुई SSP कोरंगी SP शाहजहां से। तो ये बताते हैं कि जो मुलजिम इब्तिदाई तौर पर ये बताता है
कि वो महज दुआ कराने के लिए यहाँ पर आया था। उसके कुछ घरेलू मसले मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ पर पहुंचा था। और चाकू के बारे में अभी तक जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं दे सका कि आया उसकी जेब से चाकू क्यों बरामद हुआ। उसकी जेब से एक गिफ्ट आइटम भी मिला है जो कि वो कहता है कि वो मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुआ था और उनको देना था, लेकिन अभी तक जो है वो फौरी तौर पर ये मालूम नहीं हो सका कि चाकू उसकी जेब से क्यों बरामद हुआ। उसके बारे में वो अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका है। तो ये इस वक्त जो इब्तिदाई तौर पर इतलात थी कि हमला किया गया, लेकिन वो हमला फौरी तौर पर हुआ नहीं था और उस हमले की कोशिश जरूर कहा जा सकता है कि मुमकिन तौर पर ये हमले की कोशिश हो, लेकिन पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इब्तिदाई तौर पर जो उस मुलजिम से तफ्तीश हुई है उसमें वो ये बताता है कि उसने 2 शादियां की हुई थी, दोनों बीवियां उसका घर छोड़कर जा चुकी हैं और वो शदीद मुश्किलात में था और मुश्किलात के बिना पर वो उनके पास आया था अपने मसाइल का जिक्र करने। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो वो पुलिस इस बारे में इस बात का तयन नहीं कर सकती कि आया उसकी जेब से चाकू क्यों बरामद हुआ। चाकू के बारे में वो अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड ने भी ये बताया कि उसने कोई अटैक किया नहीं था, लेकिन उसकी जेब में जैसे ही हाथ उससे डाला तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड से उसको पकड़ लिया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ये शुबा हुआ। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान अमीर कैसे होगा, वज़ीर आज़म का नुस्खा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में ज़्यादा डॉलर आए तो मुल्क अमीर हो जाएगा, ज़्यादा डॉलर बाहर जाएंगे तो मुल्क गरीब हो जाएगा। मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, हम मुस्तकबिल का प्लान करने जा रहे हैं। हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट की वजह से ये रास्ता लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई। जो आज तक मुल्क आगे गए हैं उनमें सबसे बड़ी जो एक कॉमन चीज़ रही है सारे मुल्कों ने, जो उन्होंने सब ने किया, वो ये कि उन्होंने हमेशा आगे का सोचा। इस इस्लामाबाद ने पिछले 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्रीन कवर कम हो गया। कराची में भी ये हालात हैं, समुंदर के अंदर सारा सीवरेज जा रहा है। तो ये इसके ऊपर क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तो वो प्लानिंग अब पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। सारी चीज़ें इंपोर्ट करने शुरू कर दी हैं, आसान रास्ता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि मुल्क गरीब होता जाता है। अगर ज़्यादा मुल्क में डॉलर आएंगे आपका मुल्क अमीर हो जाएगा, अगर आपके मुल्क में से ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं और कम मुल्क में आ रहे हैं वो गरीब हो जाएगा। तो चाइना की जो सारी डेवलपमेंट थी वो एक्सपोर्ट लेड थी, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई तो डॉलर्स उनके मुल्क में ज़्यादा आए, उन्होंने दुनिया को ज़्यादा माल बेचा, मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आए और इसलिए देखते देखते चाइना अब एक इकोनॉमिक जाइंट बन गया। आउट होना मामूल बन गया। इम्तिहानी सेंटर में महकमा तालीम की इंतजामिया नकल माफिया के सामने बेबस। कराची में नवी जामात के साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रिजा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। रिजा, पेपर की ज़रूरत ही क्या है सिंध में, अगर पर्चा आउट ही हो जाना चाहिए? आज भी यही सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, कराची में आज नवी जमात के इम्तिहानात का आगाज हुआ था। पहला पर्चा था साइंस ग्रुप के तलबा का रियाजी का, जो शुरू होने से आधा घंटा कबल ही आज भी जो है वो पर्चा आउट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद जो है मैट्रिक बोर्ड का इस हवाले से यही कहना था कि ये जिम्मेदारी जो है मैट्रिक बोर्ड पर आएगी होती। 8 बजे के बाद तमाम पर्चे जो है वो मैट्रिक बोर्ड से हक की जानिब रवाना कर दिए जाते हैं। वहाँ से स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी आई होती है, अगर पर्चा आउट होता है तो स्कूल इंतजामिया जिम्मेदार है। उसके लिए जो है वो स्कूल इंतजामिया को इक़दाम अपने सिक्योरिटी के लिए सख्त करने की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजा फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। पर्चे शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोयटा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम गर्मी से बिलबिला उठे। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे पर मुहित। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, सरियाब रोड, जिना रोड और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे पर मुहित है। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। सरियाब रोड, जिना रोड और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। कोयटा के शहरी परेशान हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम गर्मी से बिलबिला उठे हैं। इसके साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे पर मुहित है। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई हैं। सरियाब रोड, जिना रोड और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम गर्मी से बिलबिला उठे।